सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे विद एग्रो फॉरेस्ट्री पार्ट 2 फ्रॉम आवर बुक आर के शर्मा। सो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, तो एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्रीज को ऑन द सेम यूनिट ऑफ लैंड चाहे अल्टरनेटली या साइमल्टेनियसली ग्रो करना, इस प्रैक्टिस को हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ओके, सो इन दिस क्लास वी विल स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द बेनिफिट्स। देयर आर सेवरल काइंड लाइक environmental benefit, what are the social benefits, economic benefits of agroforestry as a practice. Okay, then some important points that are related to forestry, then tangential system of cultivation, which is very popular system in the case of forestry, and then agroforestry tree species that have allelopathic effects on crop. So this will be discussed in a tabular form. Few species are given which have some allelopathic effect. Now what is this allelopathy? It means that there is a chemical secretion by like some forest trees that can inhibit or promote the growth of the uh, uh, nearby species, either it is a plant or any other one. Like अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें तो आपके ट्री के अगल बगल आपका एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो किया है, तो उस पे फॉरेस्ट्री का क्या इम्पैक्ट होगा, जो केमिकल्स वो सिक्रीट करेगा, तो उससे क्या उसमें इनिबिशन होगा उसके ग्रोथ में. सो दैट इज द एलिलोपैथिक इफेक्ट ऑन crops due to the tree species. Okay, so there will be some few tree species which we will discuss. So let's start. First of all, the benefits of agroforestry. What are the environmental benefits? यानी कि environment को इस practice से क्या फायदा मिल सकता है? So सबसे पहले there is reduction of pressure on natural forest. Natural forest से pressure कम हो जाएगा because agriculture and forest trees are cultivated on the same unit. Okay. More efficient recycling of nutrients by deep rooted trees on the site. यानी there is an efficient recycling of the nutrients because यहाँ पे trees भी हैं, so अच्छे से nutrient recycling होगा. Then better protection of ecological system, reduction of surface runoff, पानी का बहाव कम होगा, nutrient leaching, soil erosion through impeding effect of tree roots. As there are tree roots, so these effects will be decreased. Which one? Surface runoff, nutrient leaching and soil erosion. ठीक है. Improvement of microclimate, that is माइक्रो क्लाइमेट क्या हो गया, जैसे सॉइल का अपना सरफेस टेम्परेचर हो गया या तो इवेपोरेशन का रिडक्शन हो जाए. ठीक है. थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्चिंग एंड शेडिंग, ये प्रैक्टिस भी फॉलो की जा सकती है. सो इसकी मदद से देयर कैन बी अ improvement of the microclimate, that is improvement in the soil surface temperature. Then increment in soil nutrients, बिकॉज यहाँ पे लिटर फॉल होगा, यानी जो डेड डिकम्पोज लीव्स होंगे उनकी वजह से आपका न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में प्रेजेंट है वो इंक्रीज करेंगे. देन इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर थ्रू कांस्टेंट एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. वही ऑर्गेनिक मैटर जब सप्लाई हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज डेड leaves that are falling, so there will be an improvement in the soil structure. Now what can be the economic benefits? Economic benefits कौन कौन सी हो सकती है? तो increment in an output of food, fuel wood, fodder, fertilizer and timber. यानी क्या क्या मिल सकता है हमें इस प्रैक्टिस के थ्रू? तो हमें फूड मिलेगा as we are growing the cereal crops, fuel wood, fodder, fertilizer as well as timber भी हमें इस प्रैक्टिस से मिलेगा because the forest trees are also cultivated along with the crops. Okay, then reduction in incidence of total crop failure. In the case अगर हमें मान लीजिए crop failure होता भी है, so there will be a decreased मतलब आपका इकोनॉमिकली जो बोले उतना हार्म नहीं पहुंचेगा बिकॉज आपको फॉरेस्ट ट्रीज की मदद से काफी सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे. ठीक है. तो क्रॉप फेलियर होने की वजह से देयर इज क्रॉप फेलियर काफी ज्यादा होता है इन द मोनोकल्चर सिस्टम, तो उसमें काफी लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे वो लॉस कंपनसेट हो जाता है. ठीक है. देन थर्ड पॉइंट इज द इंक्रीज इन लेवल्स ऑफ फार्म इनकम ड्यू टू इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन प्रोडक्टिविटी. सो यहाँ से फार्म इनकम की बढ़ोतरी भी होगी बिकॉज प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी हो रही है और लंबे समय तक रहेगी. ठीक. नेक्स्ट इज द सोशल बेनिफिट. सोशल बेनिफिट्स क्या हो सकता है? तो इसमें जो मेनली जो रूरल लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव होगी. ट्राइबल एरियाज में जनरली ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है. ठीक है. यहाँ पे सस्टेन एम्प्लॉयमेंट होगा और हायर इनकम होगा बिकॉज देयर इज बोथ द सिस्टम, एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी है और आपका फॉरेस्ट्री कल्टीवेशन भी है. इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ड्यू टू इंक्रीज्ड क्वालिटी एंड डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मिल रही है हमें फूड आउटपुट से, यानी सिर्फ अगर फॉरेस्ट्री होता तो जैसे आपको फ्यूल वुड, टिम्बर ये सब तो मिल जाता, लेकिन यहाँ पे अगर क्रॉप्स भी ग्रो किए जा रहे हैं साथ साथ या अगर कोई और पैस्चर भी ग्रो किया जा रहा है, तो इससे अच्छी
और अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी इन द फूड आउटपुट्स. ओके, एंड देन स्टेबलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिटी थ्रू एलिमिनेशन ऑफ द नीड टू शिफ्ट साइट्स ऑफ फार्म एक्टिविटीज. फार्म एक्टिविटीज की साइट्स को बदलने की जो ये प्रॉब्लम है उससे एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी और इम्प्रूवमेंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बुक में दिए हुए हैं. वैसे ये हमारा 2020 का एडिशन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. सो ये जो आपका डेटा है मेजरली ये आपके पिछले ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होगा, दैट इज 2019 के. लेकिन रीसेंट अभी हमारा 2021 का है, सो मैंने रीसेंट डेटा भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है. ठीक है, तो सबसे पहले लिखा एरिया अंडर फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया इज 67 MHA अकॉर्डिंग टू द आपका 2020 एडिशन, ये दिया हुआ है. ठीक है, बट करेंटली ISFR 2021 के हिसाब से इट इज द टोटल ट्री कवर एंड फॉरेस्ट एरिया जो है अपने इंडिया में, दैट इज 80.9 मिलियन हेक्टेयर. ओके, 80.9 है अभी 2021 के डेटा के हिसाब से. देन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है दैट वाज टू रेगुलेट दिस होल द फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और उसको आपका ये हुआ था आपका 1927 में. ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट. देन द फॉरेस्ट स्कूल एट देहरादून, सबसे पहला जो फॉरेस्ट स्कूल है देहरादून में FRI जो है वो आपका है 1878 में. ओके, contribution of forest product in the world GDP is 1%. forest area is highest in मध्य प्रदेश. ये आपके पिछले के हिसाब से भी और इस 2021 के हिसाब से भी सेम ही है, सो इसमें नो करेक्शन इज देयर. परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इज हाईएस्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सब बुक में दिया है. बट करेंटली आपका अगर हम देखें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा है, दैट टू इन द मिजोरम एरिया. ओके, percentage of forest cover in the world to the total area is 25% according to the previous data आपका, लेकिन currently 31% है according to FAO Global Forest Resource Assessment 2020. Okay, the systemic research in agroforestry is taken by ICRAF. Now what is this ICRAF? ये ICRAF क्या है? So this is International Center for Research in Agroforestry और ये आपका कहाँ located है? तो that is located in Nairobi in Kenya. Okay, देन आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री इंडिया में जो नेशनल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है? सो दैट इज इन झांसी. कब वो स्टैब्लिश हुआ था? तो 1988 में, लेकिन अब उसको रीनेम कर दिया गया है एज ICR सेंट्रल एग्रोफॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, सो अगर आपसे कोई बोले सेंट्रल एग्रोफॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है, सो योर आंसर विल बी झांसी. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एग्रोफॉरेस्ट्री का क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर फंक्शनल बेसिस पे एग्रोफॉरेस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं तो दे आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू. आपका कौन सा हो गया? प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव. व्हाट कैन बी द प्रोडक्टिव फंक्शंस, ये हमने अपने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि क्या क्या हमें मिल सकता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. तो फूड, फॉडर, फ्यूल वुड, क्लोथ्स, शेल्टर्स एंड एंटी FPs यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे आपके कुछ सीड्स हो गई, बेरीज हो गए, मशरूम्स हो गए, या कुछ और आप एसेंशियल ऑयल कुछ obtain कर रहे हो from the forest. So these comes under the anti-FPs. Okay, and protective functions are windbreaks, shelter belts, soil conservation, soil improvement. These are the protective functions. Windbreak यानी कि आपका अगर आप linearly पूरा forest trees को plant करते हो तो they help in slowing down the wind. ठीक है, so इससे एक तरह से protection provide करते हैं ये सब. जितना अगर आप थ्योरी पोर्शन देखो तो दैट इज वेरी मच हेल्पफुल इन योर डिस्क्रिप्टिव पेपर इन नाबार्ड ऑल्सो. नाबार्ड एग्जाम में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आपका एग्रोफॉरेस्ट्री रिलेटेड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस इज नोन फ्रॉम द कांगेयन ट्रैक्ट ऑफ तमिलनाडु, जहाँ पे किस ट्रीज को उगाया गया था? अकेशिया ल्यूकोफ्लिया एंड सेंचरस सेटिजेरस. नाउ दिस ट्री इज आल्सो नोन एज व्हाइट बबूल. ठीक है, तो दिस इज अ फॉरेस्ट ट्री. ओके, सो ये हो गया ट्री. और ये आपका सेंचरस सेटिजेरस, ये आपका बर्डवुड ग्रास भी कहलाता है. ठीक है, ग्रामिनी फैमिली से है, ग्रास है. तो ये जो है अगर हम बोले तो दिस कैन बी योर सिल्वी पास्चर सिस्टम. हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था, सिल्वी पास्चरल सिस्टम में हम इसको कह सकते हैं. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्रोफॉरेस्ट्री प्रैक्टिस दैट इज फॉलोड इन तमिलनाडु इन द कंगायन ट्रैक्ट. ओके, then agroforestry is considered as an alternate land use system for wasteland development. अगर आपका wasteland है तो आप इसको as a practice follow कर सकते हो agroforestry को, यानी agriculture. आपके several agroforestry practices है. Shifting cultivation is the oldest known agroforestry practice and is mainly practiced in the northeastern states. Northeastern states में shifting cultivation जो है वो काफी ज्यादा practice होती है. अब यहाँ पे हम कुछ agroforestry system देख लेते हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था इसको.
एग्री सिल्वी कल्चर क्या हो गया आपका? एग्री प्लस सिल्वी, यानी कि आपके क्रॉप्स के साथ साथ ट्रीज को ग्रो करना. एले क्रॉपिंग, पेरिनियल हेजेस प्लस क्रॉप्स, यानी अगर आप क्रॉप ग्रो किए हो और एक रो में आपके पूरे दीज ट्रीज आर प्लांटेड एज अ एंड दे आर एक्टिंग एज अ हेज, सो उसको हम लोग एले क्रॉपिंग कहते हैं. ठीक है. एग्री हॉर्टिकल्चर यानी फ्रूट ट्रीज के साथ क्रॉप्स का कल्टीवेशन. एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर यानी आपकी फ्रूट ट्रीज, इसके साथ इसमें क्रॉप्स भी आएंगे एंड ट्रीज भी आएंगे. ठीक है. एंड आपका एग्री सिल्वी कल्चर ट्रीज प्लस क्रॉप. ठीक है. एग्री सिल्वी पैस्टोरल होगा तो trees plus crops plus pasture. Okay. Then Sylvie pasture is trees plus pasture. Sylvie oleri is trees plus vegetable cultivation. Horti api is fruit trees with the honey bees, and aqua forestry comes in. The aqua forestry comes in trees and fishes. Okay. नेक्स्ट हमारा है टांगिया सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन. अब इसमें अगर शॉर्ट नोट अगर आपको कभी कहीं पूछे तो इसमें क्या होता है कि दिस सिस्टम वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम म्यांमार, जिसका मतलब हो गया कि हिल पे कल्टीवेशन करना. इस सिस्टम का मतलब हुआ हिल कल्टीवेशन. एंड दिस इज अ पॉपुलर प्रैक्टिस इन यूपी, केरला एंड वेस्ट बंगाल. ओके. तो ऑब्जेक्टिव इज कि फार्मर को इनिशिएट करना कि वो फॉरेस्ट ट्रीज को ग्रो करे, इसलिए इस सिस्टम को लाया गया. सो जो फार्मर जो फॉरेस्ट ट्री ग्रो करते हैं उनको क्या कंसेशन मिला कि दे कैन graze their animals for free. They have free timber for use, and also some schooling facility was provided to them. Now, what are the types? There are 3: departmental, leased, and village, which is the most successful type, village type. Okay. And most common example is planting of teak in Myanmar. What is the scientific name of this teak? This also has been asked in your NABARD exam. Tectonia grandis जो है teak का scientific name है. Okay. Next है हमारा Alnus nepalensis, which is a non-leguminous nitrogen fixing tree. Now this Alnus nepalensis आपका ये elder tree भी कहलाता है, Nepalese elder भी कह सकते हो आप. तो ये क्या है कि इसमें this is a non-leguminous nitrogen fixing tree. This is a point to remember. Then shelter belt has triangle shape with 1:10 ratio of height and width. मतलब आप बोलो कि height और width का कितना रेशियो है तो 1:10. ठीक है. और लेंथ कितना है तो like 25 मीटर approximately. Now wind breaks having 3 to 5 road proof more effective. अगर आप इसको फॉरेस्ट्रीज को एज अ विंड ब्रेक यूज करना चाहते हो तो अगर 3 या उससे ज्यादा ट्रीज हो, 3 या उससे ज्यादा रो हो, 3 to 5, then they are proved to be more effective. Now next is the definition of allelopathy. Allelopathy की definition क्या है तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था. Inhibition of growth of one plant by chemical compounds that is secreted from the neighboring plant. ठीक है. So कुछ tree species they have some allelopathic effect on some crops, so उनको डिस्कस कर लेते हैं. Alnus nepalensis का allelopathic effect है on soybean. Casuarina equisetifolia has on cowpea, sorghum and sunflower. According to the book, Eucalyptus terraticornis has cowpea, sorghum, sunflower, potato. Gliricidia sapium on maize, rice, tropical grass. And Leucina leucocephala has on maize, rice, cowpea, sorghum and sunflower. So that's all in this class. In the next class we will discuss the remaining part. Now the previous question which was asked, आपके पिछले पार्ट में जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कौन सा वो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है जिसमें एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, फॉरेस्ट ट्रीज को एक साथ ग्रो किया जाता है अलॉन्ग विद द फिश प्रोडक्शन. ठीक है. सो इसमें जैसे मैंने बोला था कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, चाहे कितनी भी बड़ी डेफिनेशन आपको दे दी जाए. सो एग्रीकल्चर हो गया तो आप समझो एग्री हो गया. ठीक है. सो इसमें से आप पहले साइड कर लो, इसमें एग्री हो गया. ठीक है. नेक्स्ट देयर इज फॉरेस्ट ट्रीज, तो सिल्वी आना जरूरी है, तो सिल्वी इसमें भी है, सिल्वी इसमें भी है, वी कैन नॉट एलिमिनेट. और फिश प्रोडक्शन आपका एक्वा होता है, तो ये तीनों किसमें है? सो इन द सेकंड वन. सो द करेक्ट आंसर विल बी एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड देन प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. फॉर मोर सच कंटेंट आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.